माय नेम इज़ मिलिंद स्वामी और मैंने ये फिल्म डायरेक्ट की हुई है फॉर एब. इट्स अ सस्पेंस थ्रिल मूवी. सो रेस्ट यू आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क. राइट, एज यू सेड कि ये सस्पेंस थ्रिलर है. थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. और हमने देखा कि पूरी स्टारकास्ट नहीं है, तो क्या क्या चैलेंजेस थे आपके? सी एक्सपीरियंस वाज वेरी ग्रेट बिकॉज द चैलेंजिंग थिंग इज़ दैट वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को लेके बनाई है. इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड एशियंस, श्रीलंकन्स भी है, all kind of artists. It was very challenging because as you can understand that they have the passion but they don't have that much polish in acting because they haven't got an opportunity. तो उनके सारा मतलब काम करना, it was a very tough job but they are very talented, which I realized it when working with them, and it was a very wonderful experience doing shooting. Canadian government have cooperated a lot. उन्होंने भी बहुत सारा support किया था, shooting outdoor also. There was no hassles shooting in abroad. Right. Can you brief us about the subject in the film? It's a story about a man who goes missing, and which is unsolved case, which is getting discussed by the police officer in one of the party, and it's unsolved mystery, so it's not been solved. So whoever the people who are sitting in a party, they are trying to solve the mystery according to their point of view, imagining the things like they suggest the people that okay, I'm going to tell you what is going to happen, what must have happened, you know. So everyone try to give their own point of view. So it's a story of the giving. There are, you can say, 5 or 6 ending in the story. Every end have the logic, and it's up to the viewers, up to the audience. They have to accept which end will be digestible, because everyone have given their end according to their point of view. It's about that. Right. Also, have you inspired from the story, or how this subject came to your mind? I'm inspired in the sense one of the writer came to me with the story, and he said, I have this thing, it's a very nice plot, and I really liked it. So we sit and we develop that plot and all. So this is how it's been improved, this thing. And whose idea was it to cast local actors in the film? We have a casting agency over there, name is starnow.com. So we have taken some of the artists from them because they have suggested as a casting director, because they are very well known over there in North America. So, and some of the artists which we have casted personally also by knowing some people, some influential and all those things. ऐसे ये नए हैं तो नए का casting वही है जो acting कर पाए. और वहाँ पे you can't have any high expectation in Canada because यहाँ पे तो बहुत सारे आर्टिस्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस है. वहाँ पे कहाँ है, सब इतना है नहीं. So when you are planning to release the film, and how many theaters you are planning? As far as releasing is concerned, right now we are the India rights exclusively. We are keeping it with ourselves. We will be launching it on our OTT platform filmx.net, and overseas, yes, we will be selling to the Canada, London. Individual rights we are selling it to China and Hong Kong and all those places. But in India, we haven't planned of releasing right now, because we will be launching our own Film Access, and through that we will be telecasting the thing. So which certificate you are expecting for the film? I will be expecting U, because there is no any such vulgar content in that. It's a neat and clean movie. Everyone can watch it. It's a nice thrill movie. टाइटल आपको मिल गया? फरेब पहले भी फिल्म आ चुकी है. वेल हाँ, मिल गया मुझे. कोई हैसल्स हुआ नहीं तो डेफिनेटली मिल गया. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है टाइटल्स में. पहली फिल्म हमारी है प्रोडक्शन की, और हमने जो शुरू किया, जब मिलिंद जी से बात हुई, हम लोग बोला कुछ अच्छी फिल्म बनाएंगे. बोले ठीक है, हम अच्छी स्टोरी अपने पास है, तो हमने फिल्म बनाई. लेट्स सी कि ऑडियंस हमको जो है वो इसका रिएक्ट करेगा. हमने हमारी जो पैशन था फिल्म बनाने का, हमने बना दिया है, और अच्छी चीज़ें जो ऑडियंस सोचेगी वो हिसाब से लेट्स सी what will get a effect from the audience. सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या खास बात लगी है फिल्म की जो अपने ऑन बोर्ड? सर मैं तो कुछ बोलिए, मेरे जो सीनियर है, मेरे साथ जो सीनियर्स लोग हैं, उन्होंने जो डिसाइड किया, मैं उसमें खुश हूँ सर. राइट. ऑल्सो जैसे मैंने सर से भी पूछा था कि पूरी स्टारकास्ट नहीं है, तो वो कितना चैलेंजिंग पार्ट होता है
लोगों तक पहुंचाने के लिए फिल्म, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि पूरे लोकल एक्टर्स हैं और सब नए हैं, तो कितना डिफिकल्ट या इजी होगा आप लोगों के लिए? नहीं, क्या है कि ये एक्चुअली हमारे इंडियंस ही है, बट वहाँ जाके सेटल हुए हैं, तो उनको लेके उनकी भी वहाँ एक्टर्स ऑलरेडी हैं, तो उनको लेके हमने वहीं पे लोकल शूट वहाँ पे कर लिया, ताकि ये सब यहाँ के स्टार ले जाओ वहाँ पे, और उनका टैलेंट हमने देखा, हमने 2-3 बार वहाँ पे ऑडिशन रखा था, तो अच्छे एक्टर मिले हमको, तो बोला ठीक है हम लोग शूट करेंगे। चैलेंजेस मीन्स कि ऐसे कुछ बड़ी चैलेंज नहीं, उनको भी करने का एक शौक है कि हमें करना, एक्टिंग करनी है, तो पैसे उनको वहाँ पे जो चाहिए स्कोप नहीं मिल रहा था, तो हम लोग ठीक है हमारे करिए, तो हमने वैसे कास्टिंग हमारे थे उन्हें कोऑर्डिनेट करवा लिया, और भी वेरी स्मूथ शूटिंग हुई, ऐसे कुछ हौच पौच नहीं हो वहाँ पे। सो एज अ प्रोड्यूसर आप लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता था डायरेक्टर साहब के साथ और पूरे कास्ट एंड क्रू के साथ, थोड़ा उस बारे में बताइए। नहीं, मिलिंद जी ने मैक्सिमम कोऑर्डिनेट एक्टर्स के साथ किया वहाँ पे, बिकॉज ही वाज फ्रॉम देयर ओनली, कनाडा, कनाडा से ही उनके जो लोकल आर्टिस्ट सब उनके दोस्त यार, मतलब टू बी लाइक अ ग्रुप, तो मेजर उनका ये था इसमें रोल कि वो वहाँ से लोगों को कन्विंस करके दे जस्ट स्टोरी और इसके हिसाब से जस्ट लाइक अच्छा उन्होंने पूरा ये कह दिया, मैनेज किया। ऑल्सो जैसे मैंने सर से पूछा था कि कौन सा सर्टिफिकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी मतलब इसमें हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, सर ने कहा यू सर्टिफिकेट, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू मिल जाएगा करके? यू मिलना चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से अंदर हमने जितना दिखाया उसमें कुछ ऐसा ये नहीं कि हमने को यू ए मिले या कुछ है, लेकिन यू मिलना चाहिए, वी एक्सपेक्ट द यू सर्टिफिकेट। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने सर से पूछा था कितना इन्वॉल्वमेंट रहता था, जैसे मैंने पहले पूछा कि सर ने जो डिसाइड किया, तो ऑन सेट किस तरह का मतलब आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता था, आप दोनों का थोड़ा सा उस बारे? सर हम लोग का इन्वॉल्वमेंट तो इतना था, जैसा कि हर एक मेरे जितने भाई लोग का जितना इन्वॉल्वमेंट था, जो आर्टिस्ट हो गया सब, वैसा इन्वॉल्वमेंट हम सबका उसमें ही था सर, जैसा सबका था वैसा हमारा भी था सर। राइट। और सर OTT पे लॉन्च करने का प्लान है या फिर बड़े पर्दे? ये पहले हम अभी एब्रॉड में तो हम थिएटर रिलीज़ करेंगे, बट इंडिया में OTT में हम हमारी खुद की OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं, फिल्मैक्स नाम से वो अभी आएगी, उसमें हम पहली फिल्म में रिलीज़ करेंगे हमारी, उसके बाद हमारी 3 से 4 फिल्म और लाइनअप है जो हमारे OTT के लिए ही हम ये फिल्म बना रहे हैं, और रिलीज थिएटर राइट्स फिर रिलीज हम करेंगे, डिपेंड्स जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ओके, तो मतलब वो फिल्मों में भी जो है नए एक्टर्स हमें देखने मिलेंगे जो डेब्यू कर रहे हैं? यस ऑल न्यू, बट कंटेंट अच्छा होगा, मेकिंग अच्छी होगी, जो देखने के बाद लगे कि हाँ कुछ फिल्म हमने देखी, कुछ तो इट्स नॉट लाइक कुछ भी बना दिया और चला दिया ऐसे। सो वी ऑल्सो लुक फॉर द कंटेंट और क्वालिटी एक्चुअली कैसे इंक्रीज हम कर सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।